Today we will start exercise 15.1 of chapter Circle for class 9 for ICSE from ML. From question number 16. First 15 sums we have already done. If a diameter, question is, if a diameter of a circle is perpendicular to one of the two parallel chords. Two chords क्या है? Parallel given. Prove that it is perpendicular to the other and bisected. If a diameter of a circle is perpendicular to one of the two parallel chords, one chord पे perpendicular. First of all, we can draw the figure. Draw a circle. Draw its two parallel chords. AB and CD I have drawn. These two chords are parallel. Given AB parallel to CD, a diameter is perpendicular to one of its chords. PQ, RS. Suppose this is perpendicular. PQ is given perpendicular to AB. What we have to prove? We have to prove perpendicular to the other. Matlab this diameter is perpendicular to this. Means we have to prove PQ is perpendicular to CD and bisected CR is equal to DR. We have to prove. We have to prove these two things. Yes. Ekna, how we can do this? Sir, is AS equal to SB? No need. This angle is equal to this angle. Yes, Angle sir. CRS is equal to angle RSB. Alternate interior angles. ठीक है? Yes, RSB sir. कितना given है हमें? The value of RSB is given 90. पहला पार्ट प्रूफ हो गया. So therefore PQ is perpendicular to CD. समझ आया बच्ची? ये 90 हो गया तो ये लाइन इस पे परपेंडिकुलर है. Also now theorem number 1, perpendicular from the center of a circle bisects the chord. Now perpendicular from the center of a circle bisects the chord. Therefore CR is equal to DR. कंप्लीट. ये भी प्रूव हो गया और ये भी प्रूव हो गया. छोटा सा सम था. सिंपल. समझ आया बच्ची सबको? यस सर. अनुश्री समझ आ गया बेटा? यस सर. दृष्टि, सृष्टि, यश, पलक को तो आ ही गया. क्वेश्चन नंबर 17. That is totally boring question. In an equilateral triangle, prove that centroid and circumcenter of triangle coincides. Centroid. पलक, सेंट्रॉइड कौन सा पॉइंट होता है? Sir, center of the triangle where like lines of congruency meet. नो. औरुष, सेंट्रॉइड कौन सा पॉइंट होता है बेटा? Sir, the point in the center. नो. प्रिस्टी, I don't know. प्रिस्टी, Sir, I don't know.
You don't know. Anyone? Anushri? No, sir. No. कोई स्टूडेंट यहाँ पे ऐसा जिसको सेंट्रॉइड का पता हो? एक ना? Sir, यस सृष्टि? sir, it is the point equidistance. Where all the three medians meet. जहां पे मीडियंस मीट करते हैं, दैट इज कॉल्ड सेंट्रॉइड. चलो मैं पहले इसकी डेफिनेशन लिख देता हूं कि सेंट्रॉइड क्या होता है. द पॉइंट वेयर all the three medians meet. Three medians of a triangle meets is called median. अब मीडियन की डेफिनेशन पता है किसी को? एनीवन नो द डेफिनेशन ऑफ मीडियन? मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल. बोलो, जिसको भी पता है बोल दो. एनीवन? नो? Median is the line drawn from a vertex. Yes, vertex to midpoint of opposite side. So vertex to A line segment joining vertex to midpoint of, देखो A is the vertex, BC is the opposite side. This line segment joining vertex to midpoint of opposite side. A line segment joining vertex of a triangle to midpoint of opposite side is called median. In a triangle, there are three medians, and all the three medians must passes through single point. That is, I have taken as O. Here, O is the centroid. Okay. ये डेफिनेशन पता होनी चाहिए. मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल क्या होता है, सेंट्रॉइड क्या होता है. तीसरा वर्ड आ गया सर्कमसेंटर. Circumcenter, the center of circle which passes through all the three vertices of a triangle. Three vertices of a triangle. Find कैसे होता है ये? How we can find? Where circumcenter is a point where all the perpendicular bisectors of sides meet. Of sides meet. एक ट्रायंगल के अंदर इस साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इस साइड का और इस साइड का, जिस पॉइंट पे हम इंटरसेक्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड सर्कमसेंटर. इस पॉइंट को सर्कमसेंटर बोलते हैं. ये चीज पता लग गई बच्चे? सर्कमसेंटर कैसे फाइंड होगा? वेयर ऑल द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड्स मीट. अंडरस्टूड? This one. Now, question number 17. In an equilateral triangle, prove that centroid and circumcenter of the triangle coincides. मैं सर्कल ड्रॉ कर लेता हूं. सर्कम सर्कल हो गया ये. सर्कम सर्कल का मतलब जो तीनों वर्टिसेस में से पास करता है. That circle is called circumcircle. ABC. Median.
and perpendicular bisector of, देखो सर्कम मीडियन इस पे लाई करेगा, सेंट्रॉइड इस पे लाई करेगा ना बेटा, मीडियन पे, यस और नो? Yes, sir. बोलो। एंड सर्कम सेंटर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ, मतलब हमें गिवन क्या है, AD is a median and O is its centroid. ठीक है? What we have to prove? O is also circumcenter. Coincides. Coincide का मीनिंग पता है? यहाँ पे क्वेश्चन में एक वर्ड आ रहा है coincides. सर What is the मतलब जहाँ पर मीट हो रहे हैं। हाँ नहीं, coincides बच्चे, same point. Coincides means same point. Same point का मतलब कि सर्कम सेंटर भी यही होगा। सर्कम सेंटर का मतलब AD is the perpendicular bisector. मैंने अभी आपको समझाया ना कि सर्कम सेंटर क्या होता है, जहां पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड्स मीट करते हैं। सेंट्रॉइड क्या होता है, जहां पे मीडियंस मीट करते हैं। मैंने एक मीडियन ड्रॉ कर लिया, सर्कल की वैसे जरूरत नहीं थी इसमें, देयर इज नो नीड ऑफ सर्कल। अगर मैं AD को BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर प्रूव कर दूं तो AD क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, आल्सो द सेंट्रॉइड, सॉरी सर्कम सेंटर। प्रूफ, ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट करो, ये दोनों ट्रायंगल्स क्या करो, कॉन्ग्रुएंट। इन ट्रायंगल्स ABD एंड ACD, ABD एंड ACD, AB इज इक्वल टू AC। अनुश्री, वाई AB AC की इक्वल क्यों है, रीजन? Congruent triangles. इक्विलेटरल ट्रायंगल, all sides of equilateral triangle are equal. Second, BD is equal to CD, क्योंकि मैंने मीडियन ऑलरेडी ले लिया था, डबल कट लगा दिया मैंने, गिवन। तीसरा बच्चे, AD is equal to AD, दैट इज कॉमन साइड। तो दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गई, कॉन्ग्रुएंट हो गई। बाय SSS रूल। ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट तो ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल आ गया, 1 और 2 मार्क कर दिया, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, CPCT। बट दोनों में रिलेशन क्या है 1 और 2 में, फॉर्म अ linear। Now angle 1 plus angle 2 is 180. The reason is linear pair. बट 1 और 2 इक्वल है आपस में, तो 1 प्लस 1 लिख सकता हूं। 2 एंगल 1 इज इक्वल टू 180 एंड एंगल 1 इज 180 अपॉन 2, दैट इज 90। 190 हो गया, तो देयरफॉर AD इज परपेंडिकुलर टू BC। आल्सो BD इज इक्वल टू CD, ये हमें गिवन था, मीडियन दिया था ना, ये हमें गिवन था। तो देयरफॉर AD क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC, देयरफॉर AD इज आल्सो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। देयरफॉर सेंट्रॉइड जो मीडियन पे होता है एंड सर्कम सेंटर जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड्स पे मीट करते हैं। सर्कम सेंटर of an equilateral triangle coincides, यही हमें प्रूफ करना था। ठीक है, और वी कैन से
therefore O is also circumcenter. बस, मतलब बेकार सा सम था। दोनों में से या तो मीडियन ले लो या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड्स ले लो। हमने क्या किया, मीडियन ले लिया और इस एंगल को 90 प्रूव कर दिया। कैसे? इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट किया, कॉन्ग्रुएंट करने से ये एंगल इसके इक्वल आ गया, बट दोनों का सम 180 है, लीनियर पेयर। वन को वन रखा, टू को मैंने वन लिख दिया, यहाँ रीजन लिख दो, सिंस 1 इज इक्वल टू 2 प्रूव्ड अब हमने इसको प्रूव किया है। तो 2 एंगल 1 इज 180, एंगल 1 कितना आ गया 90, एंगल 1 90 है तो एडी क्या हो गया इस पे परपेंडिकुलर, ये एंगल 90 आ गए हमारे पास, आ गए, तो परपेंडिकुलर आ गया। बट बीडी इज इक्वल टू सीडी हमने ऑलरेडी लिया था, तो एडी क्या हो गया, बीसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया। एडी इज आल्सो द मीडियन एंड एडी इज आल्सो द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और साइड बीसी, तो मतलब एडी मीडियन भी है और बीसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी है। दूसरी मीडियन भी ऐसी करेगी, वो परपेंडिकुलर भी होगी और बाइसेक्ट भी करेगी उसकी उसको, तो मतलब देयरफॉर सिंस देयरफॉर एडी, एक सेकंड, also perpendicular bisector of BC, therefore centroid and circumcenter of an equation of an अच्छा इक्वेशन नहीं था, इक्विलेटरल डाला था, इक्विलेटरल ट्रायंगल कॉन्साइड्स। बस थोड़ा रेक्टाफिकेशन वाला समय है, ठीक है, समझ गए? नेक्स्ट सम, क्वेश्चन नंबर 18। हाँ जी, सब अगर वो इक्विलैटरल ट्रायंगल ना देके कोई और दिया होता तो फिर प्रूव नहीं कर सकते फिर थे नहीं ना? होना था, फिर नहीं बच्चे नहीं कोइंसाइड होता। करते ना, ओनली इन इक्विलेटरल ट्रायंगल कोइंसाइड करते हैं, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल में एल्टीट्यूड, मीडियन, एंगल बाइसेक्टर एक ही लाइन पे होते हैं, ठीक है, नॉट इन एनी अदर ट्रायंगल। 18 का ए पार्ट बेटा, हमें एक सर्कल दिया है, फिगर गिवन है, मतलब एक डायमीटर है ऐसे ओ, यहां से एक लाइन ऐसे जा रही है, यहाँ ए है, इसको इसके साथ ज्वाइन किया है, यहाँ सी है, बी, यहाँ पे डी। इन फिगर गिवन बिलो ओडी इज परपेंडिकुलर टू कोड, ये 90 गिवन है, whose center is O, BC is diameter, show that what we have to prove, CA is 2 times OD। हाँ जी, एक ना, Yes, sir. कैसे करें? गिवन BC is a diameter and OD is perpendicular to AB, ये दो चीजें गिवन। Sir, AD will be equal to DB as perpendicular drawn from the center to a chord bisects the chord. Since this is given, सेंटर से कॉर्ड पे परपेंडिकुलर गिवन है, तो देयरफॉर AD इज इक्वल टू BD, और यहां पे रीजन परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। ठीक है बच्चे, इसके बाद ये इसके इक्वल आ गया। So now D is the midpoint. So क्या? from टेल मी। sir, from midpoint theorem. वेरी गुड, बहुत खराब बच्चा है मेरा ये, बिल्कुल सही बच्चे, गलत पूछ लिया मैंने, किसी और से पूछना था, इसने तो बता ही देना था। AD इज इक्वल टू DB, ये हमने प्रूव कर दिया इस थ्योरम से। CO इज इक्वल टू OB, दिस इज रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, एक ही सर्कल के रेडियस है, देखो सेंटर है, OC इज द रेडियस, OB इज द रेडियस। इस ट्रायंगल के अंदर दिस लाइन सेगमेंट DO joining midpoint of any two sides is parallel to third side,
Therefore, DO is parallel to AC and DO is half of AC. Reason is midpoint theorem. आरुष, midpoint theorem की स्टेटमेंट याद है? सर स्टेटमेंट तभी midpoint theorem अप्लाई कर पाओगे ना. नहीं सर, भूल गया मैं। भूल गया. चलो, समिति आपको आती है? एक सेकंड. ये फिगर है नीचे. O is the center of circle. AB and AC are chords of the circle such that AB is equal to AC. AB AC के इक्वल है. And OP perpendicular to AB. This is given. OQ perpendicular to AC. This is given. What we have to prove? We have to prove PB is this one, is equal to QC. Proof. First of all, Sayona. Sayona. नहीं बोलना. यश. Yes, sir. Yes, sir. AB AC के इक्वल है. This is given. Yes, sir. OP perpendicular to AB and OQ perpendicular to AC. तो AB को मैं क्या लिख सकता हूं? यश. Sir, half A. AM. Oh, sorry, sir, 2 AM. AM मुझे नहीं चाहिए, मुझे चाहिए ये वाली ट्रायंगल. तो BM, देखो AM Sir. BM के इक्वल होगा. तो AB also we can write as 2 times BM. In the same manner, AC can be written as, because AN is equal to CN. AC can Sir, be written 2 as CN. 2CN. 2 CN. Reason Sir, is perpendicular drawn from the center of circle bisects the chord. yes, perpendicular from the center bisects the chord. Two is cancelled. We get BM is equal to CN. BM is this one जो डार्क कर दिया, CN जो डार्क कर दिया. ये दोनों आपस में इक्वल आ गए. डबल कट लगा देता हूं. This angle is equal to this angle, each 90. परपेंडिकुलर था तो चारों एंगल 90 होंगे, तो ये एंगल 90 हो गया. थर्ड थिंग, नाउ ON पहले तो लिख लो AB इज इक्वल टू AC गिवन. AB को बच्चे में AB और AC इक्वल है, तो ON और OM इक्वल होंगे. यस और नो? Yes, sir. यहां पे थर्ड थ्योरम, अभी तक थर्ड थ्योरम का यूज नहीं हुआ था. फर्स्ट टू थ्योरम्स ही चल रही थी. थर्ड थ्योरम क्या थी? इक्वल कोर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर. लिख देता हूं मैं यहां पे, इक्वल chords of a circle are equidistant from center. देखो ये दोनों chords इक्वल है, तो सेंटर से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वो इक्वल होगा. दैट मींस OM ON के इक्वल आ गया. टेक इट एज इक्वेशन नंबर 1. नाउ OP OQ के इक्वल है. यश? Yes, sir. OP is equal to OQ. Reason? Sir, radii of circle, same circle.
यस, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, सेम सर्कल के रेडियस। सब्ट्रैक्ट कर दो बच्चे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, ओपी माइनस ओ एम, यहां से बच्चे ओ क्यू माइनस ओ एन, ओपी में से ओ एम माइनस किया, क्या आ गया हमारे पास, पीएम आ गया। ओ क्यू में से ओ एन माइनस किया, क्या रह गया हमारे पास, क्यू एन आ गया। अब ये दोनों ट्रायंगल्स देखो, सी एन बी एम के इक्वल, एंगल सी एन क्यू एंगल बी एम पी के इक्वल, ईच 90, क्यू एन इज इक्वल टू पी एम, प्रूव्ड अबव। ये इसके इक्वल प्रूव कर दिया, ये 90 गिवन है हमें, क्यू एन एम पी के इक्वल। तो वाई विच रूल दीज टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, कौन से रूल से सर कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। सर RHS रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। मैं अब और आ जाऊं, यश, नो सर। बस 90 आ गया तो आरएचएस लगेगा। सर SAS सॉरी। मैं साथ में जाऊंगा एग्जाम में, है यश, तेरा हाथ पकड़ लूंगा, है ना यश, कि नहीं नो सर। आरएचएस नहीं लिखना, कुछ और लिख। सर SAS। बच्चे, हाँ एस एस है, बट थोड़ा ध्यान से, क्योंकि वहां पे मैं नहीं हूंगा तुम्हारे साथ एग्जाम में, आपको देख के लिखना है वहां पे, अंडरस्टूड। ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट कर लोगे बच्चे, मैं ना करूं, बोलो। ट्रायंगल सी एन क्यू कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी बीएमपी के बाय एस 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 ए एस रूल, सॉरी एस एस रूल से कॉन्ग्रुएंट। तो सी क्यू फर्स्ट थर्ड किसके इक्वल, फर्स्ट थर्ड बीपी, और यही हमें प्रूव करना था, रीजन इज सीपी। ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट कर लोगे बच्चे, मैंने सिंपल फिगर में बता दिया, एस एस रूल, दो साइड्स इंक्लूडिंग एंगल। समझ आया कि फिर से करवाऊं, बोलो। सर आ गया। पलक को तो आ ही जाता है, बाकियों को नहीं आता। एकना, इज इट ओके। Sir, got it. अभी चला कौन गया, एक जना भाग गया, और या पलकिया दृष्टि सृष्टि श्यान सायना यश, समिति भाग गई। चलो कोई बात नहीं। नेक्स्ट वन, 19th एज। इन फिगर फर्स्ट, फिगर गिवन है, मैं फिगर ड्रॉ कर देता हूं बेटा। इसमें हमें क्या गिवन है, दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स गिवन है, ऐसे, मतलब उनका सेंटर सेम है, ओ। एक कोड है ऐसे, यहां पे ए है, यहां बी है, यहां सी पॉइंट, यहां डी पॉइंट, एल, एल क्या दिया है, वैसे ही दे रखा है, लाइन एल। अच्छा, इस लाइन को नेम दे दिया उन्होंने एल, मैं एल यहां पे डाल रहा हूं, उन्होंने यहां लिखा हुआ है, इस पूरी लाइन को नेम दिया उन्होंने एल का। अब इस फिगर में देखो, गिवन बिलो अ लाइन एल, ये लाइन एल है, जो एडी है ना, वो लाइन एल नेम दिया है उसको, इंटरसेक्ट टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स एट पॉइंट ए बी सी डी। ओहो, सृष्टि, कॉन्सेंट्रिक मीन्स, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स कौन से होते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, सृष्टि। ये बोलती नहीं है, पता नहीं क्या बीमारी है इसको, सर कैन आई से। हंसने लगी। सर मैं बोलूं? सर नहीं, मैं। प्रिस्टी, प्रिस्टी, सर इन विच मतलब दो सर्कल में बस एक सेंटर रहना, सेम सेंटर। एक सेंटर नहीं, सेम, एक नहीं बोलना, सेम सेंटर। टू सर्कल्स विद सेम सेंटर आर कॉल्ड कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। ठीक है सृष्टि जी, अब इसको जी बुलाना पड़ेगा मुझे, तभी बोलेगी। मौन व्रत तो नहीं रखा हुआ,
सृष्टि बोलती नहीं है, टाइम वेस्ट करवा देती है। पॉइंट एबीसीडी प्रूव दैट एबी इज इक्वल टू सीडी। बहुत इजी सम है। कंस्ट्रक्शन मतलब हमें टू प्रूफ क्या करना है, ए बी ये वाला पार्ट इसके इक्वल प्रूफ करना है। ए बी इज इक्वल टू सी डी वी हैव टू प्रूव। प्रूफ उससे पहले कंस्ट्रक्शन, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो, ओ एम ड्रॉ ओ एम परपेंडिकुलर टू एडी, एडी पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया। प्रूफ पृष्ठी इन बिगर सर्कल OM is perpendicular to chord AD। बिगर सर्कल में AD chord है, कंस्ट्रक्शन किया है हमने। तो थ्योरम अप्लाई करो, हम क्या क्या आ जाएगा हमारे पास, व्हाट वी गेट, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट्स द chord। तो व्हाट वी Bisect the गेट, chord. Please, BM equals to बिगर MCM. सर्कल में AD बेटा, मैं अच्छा, तभी तो bigger AM is equals to ML. MT, I M mean. MD. DM और MD। टेक इट एज फर्स्ट इक्वेशन। रीजन भूल गया मैं, क्या था रीजन, Perpendicular from the center of the circle bisects the chord. बिल्कुल सही, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट्स द chord। लिख लोगे ना थ्योरम अब। नाउ Yes. इन स्मॉलर सर्कल chord कौन सी है स्मॉलर सर्कल में पृष्ठी, BC. हाँ BC इज अ chord। OM BC पे परपेंडिकुलर है। तो यहां से क्या आएगा हमारे पास थ्योरम अप्लाई करके, BM BM equals to CM. यस, सेकेंड इक्वेशन और सेम रीजन जो यहां पे आया था, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट्स द chord। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, AM माइनस BM एंड यहां से DM माइनस CM। अब AM में से BM माइनस किया तो क्या बचेगा पृष्ठी, फिगर में देखो, AM माइनस BM क्या बच गया हमारे पास, AB. AB एंड DM में से CM माइनस किया तो क्या CD. बच गया हमारे पास, CD। और यही हमें प्रूफ करना था, सिंपल। देखो बिगर सर्कल में AD इज अ chord, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट्स द chord, तो AM DM के इक्वल आ गया। टेक इट एज इक्वेशन 1। फिर स्मॉलर सर्कल में BC chord है, परपेंडिकुलर है BC पे, तो BM CM के इक्वल आ गया। इसको सेकंड इक्वेशन लिया, AM में से BM माइनस होगा, DM में से CM माइनस होगा। ये ऐसे लाइन लिखनी है और हमारा आंसर आ गया। समझ आ गया बच्चे सबको, यस सर। बंगाली बाबू, Yes, sir. हाँ सर, समझ में आ गया। आ गया। हाँ सर। रसगुल्ला नहीं भेजा ना तूने मुझे, कोई बात नहीं। सर मैं छोड़ दिया सर रसगुल्ला खाना। मैंने नहीं छोड़ा, मुझे डायबिटीज है, मैं तो भी खा लेता हूँ। सर इसलिए तो मैं आपको नहीं भेज रहा हूँ सर। ओहो, मैं धोखे खा लूंगा। मेरे घर वाले यही करते हैं, जब भी ना स्पंजी रसगुल्ला घर में आ जाता है, खाने का तो मन करता है, मेरे को धोखे दे सर देते लेकिन हैं। आप एक साल में तो एक दो बार खा ही सकते हैं। मैं ऐसे तो खा लेता हूँ, मैं छुप छुपा के खा लेता हूँ घर वालों से। रात को ना चुपचाप उठता हूँ जब सारे सो जाते हैं, तो जाके किचन में से फ्रिज में से निकाल के खा लेता हूँ। सुबह उठ के कहते हैं कहाँ गया कहाँ गया, मैं मुझे क्या पता।
ऐसे करता हूं मैं। ओए, आज सबने वीडियोस बंद कर दी, पलक को, सायना और एगना को छोड़ के। अनुश्री समझ आ रहा है? यस सर। हाँ जी। नेक्स्ट सम बेटा, ये 19 का बी पार्ट। In figure given below, chord AB and CD of a circle with center O intersect at E. AB and CD E पे इंटरसेक्ट कर रही है। OE इस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब ये एंगल इस एंगल के इक्वल गिवन है। AED को बाइसेक्ट कर रहा है। AB को CD के इक्वल प्रूव करना है। गिवन एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल, बस, और कुछ नहीं किया हुआ। टू प्रूव we have to prove AB is equal to CD. कंस्ट्रक्शन प्रूफ क्यों लिख दिया मैंने? कंस्ट्रक्शन, ड्रॉ OM perpendicular, ON perpendicular. Draw OM perpendicular to AB and ON perpendicular to CD. Proof, ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अनुश्री, इन ट्रायंगल्स EOM and EON एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल गिवन है, मैंने गिवन लिख दिया। सेकंड, बोलो बच्चे। सर EM equals to EN. नहीं, ENO के इक्वल, EMO एंगल ENO के इक्वल, ईच 90 परपेंडिकुलर हमने कंस्ट्रक्शन किया ना, तो Yes, दैट sir. मींस दीज टू एंगल्स आर 90। OE कॉमन। तो मुझे अनुश्री ये बता दो, ट्रायंगल्स कौन से रूल से कॉन्ग्रुएंट हुई? Uh, angles, side angle. नो, एक ट्रायंगल छुपा लो। एक ट्रायंगल में देखो क्या यूज किया, दो एंगल एक साइड, या तो ASA होगा या AAS होगा। ASA हो नहीं सकता क्योंकि ME यूज नहीं किया हमने, तो AAS रूल हो गया। Yes. बताइए, यहां तक समझ आ गया बच्चे सबको? Yes, sir. एकना, आरुष, पलक, दृष्टि, सृष्टि, Yes, सायना, sir. यस पक्का? सर। और गारंटी। गारंटी? गारंटी तो किसी चीज की भी नहीं होती। तो OM ON के इक्वल आ गया, CPCT। OM ON के इक्वल होगा ना, CPCT कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। अब जो फोर्थ थ्योरम हमने की थी, याद करो, इफ कोर्स ऑफ अ सर्कल आर इक्विडिस्टेंट, मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल हो, देन कॉर्ड्स आर इक्वल। तो देयरफॉर AB इज इक्वल टू CD, और यहां पे हम रीजन लिखेंगे। वी नो दैट इफ कोर्स ऑफ अ सर्कल आर equidistant from center, then chords are equal. Then chords are equal. ठीक है बच्चे, समझ आ गया? लिख लोगे? यहाँ मेरे पास स्पेस कम थी इसलिए मैंने ऐसे ही लिख दिया, गंदा सा। हो गया प्रूफ, छोटा सा सम, समझ आया? थ्योरम अप्लाई की हमने। फोर्थ वन, हमने क्या किया, ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट की AAS रूल से। ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई तो OM ON के इक्वल आ गया। परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर आर इक्वल इफ कॉर्ड्स, ये देखो AB और CD कॉर्ड्स हैं, इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर,
then chords are equal. बस हो गया. अंडरस्टूड. बाकी Yes. बच्चे खुद करोगे ना, जब Yes, sir. ट्राई करोगे, अपने आप लिखोगे, तब ज्यादा अच्छे से पता चलेगा आपको. ओके. नाउ 20th sum, A part, last sum of this exercise. Figure is given. ये सेंटर में O, यहां CD, यहां पे AB. In figure given below, AD is the diameter, AB parallel to CD. Prove that AB is equal to CD. AB को CD के इक्वल प्रूव करना है. Given AB is parallel to CD. To prove AB is equal to CD. कंस्ट्रक्शन वही सेम कंस्ट्रक्शन यहां पे करेंगे. परपेंडिकुलर, नीचे भी परपेंडिकुलर कर दिया. OM परपेंडिकुलर टू CD, ON परपेंडिकुलर टू AB. अब मैं यहां पे प्रूफ नहीं कर रहा, मैं सिंपली एक शॉर्टकट में मार रहा हूं. DM ODM कॉन्ग्रुएंट करोगे आप OAM की, अपने आप करोगे. ये दोनों ट्रायंगल्स आपने कॉन्ग्रुएंट करनी है. कॉन्ग्रुएंट कैसे होगी? ये 90-90 के इक्वल. दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल. एंगल A इज इक्वल टू एंगल D. ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल. पैरेलल का भी तो यूज करना है. तीसरा बच्चे OD इज इक्वल टू OA. हाँ जी अनुश्री, by which rule that triangles are congruent? Sir, sir, I don't know. बच्चे ऐसे नहीं चलेगा काम फिर. Sir, I actually haven't read that chapter. आपने कितने रूल्स हैं ये तो पता है ना आपको कॉन्ग्रुएंसी के. चलो ये मैं आपके सामने रूल लिख देता हूं. ये 5 रूल्स हैं. अब मुझे ये बताओ इनमें से कौन सा रूल एप्लीकेबल हुआ यहाँ पे. इसके लिए मैं एक तरीका बताता हूँ अनुश्री. एक ट्रायंगल को छुपा लो. एक ट्रायंगल दिख रही है ना आपको, ODM. Yes, sir. इसमें से क्या कुछ यूज किया, हम मैंने मार्क भी किया हुआ है, किया है ना. Yes, sir. एक तो 90 डिग्री एंगल, एक एंगल D और एक साइड OD. So, दो एंगल RHS यूज का हुए हैं. RHS का मतलब क्या होता है? राइट एंगल है, right triangle hypotenuse. हाइपोटेन्यूज है. साइड यूज हुई है कोई? नहीं हुई ना बेटा. No, no. तो RHS. चलो आप पहले रूल से शुरू हो जाओ. SSS, इसको मैंने छुपा लिया. SSS तीनों साइड यूज की है इस ट्रायंगल No, की, no, तो sir. पहला रूल नहीं लगेगा. दूसरा SAS, दो साइड यूज की है इस ट्रायंगल की, No, sir. ये भी नहीं लगेगा. तीसरा ASA, दो एंगल एक साइड है बट साइड इंक्लूडिंग होनी चाहिए थी, ये दो एंगल यूज किए हैं, MD साइड होनी चाहिए थी, तो ये रूल भी नहीं लगा. AAS, एंगल एंगल साइड, दो Yes, एंगल्स के sir. बाद वाली साइड, तो ये रूल एप्लीकेबल. RHS क्यों नहीं लग रहा? राइट एंगल है, हाइपोटेन्यूज है, पर साइड कोई नहीं यूज हुई. और समझ गए? Yes, sir. AAS रूल से ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगी? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे. आई थिंक सो सबको इजीली समझ आ गया होगा ये कॉन्ग्रुएंसी तक. Yes. Yes, sir. Yes. ये कॉन्ग्रुएंट कैसे करनी है, Yes, ठीक sir. है. तो OM फर्स्ट थर्ड OM के इक्वल आ गया. ये साइड इस साइड की इक्वल आ गई. वही फिर से वही थ्योरम, फोर्थ थ्योरम, कोर्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम सेंटर. देखो सेंटर से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस था वो इक्वल है, तो कॉर्ड्स आर इक्वल. लिख लोगे यहाँ पे, if chords of a circle are equidistant from center, then chords are equal. So therefore
ए बी इज इक्वल टू सी डी। या इसका रीजन सीपीसीटी आएगा, और इसका रीजन मैंने यहाँ पे लिख ही दिया, ए बी सी डी की इक्वल क्यों है। समझ गए बच्चे? अंडरस्टूड? Yes, sir. लास्ट सम, पलक। Yes, sir. किसी को जल्दी तो नहीं है जाने की? नहीं सर। No, sir. सेकेंड एक्सरसाइज में ना 4 ही सम है, तो चैप्टर फिनिश हो जाएगा हमारा बस। सर थ्योरम 5 कहीं भी इस्तेमाल नहीं हुआ है। सॉरी, सर थ्योरम 5 जो दिया हुआ है, जो आपने मतलब एक्सप्लेन नहीं किया था, नहीं वो वो मैंने कहीं भी। मैंने तभी तभी तो मैंने करवाई नहीं, अच्छा। उसका कहीं यूज नहीं हुआ। ठीक है ना, बता दूंगा तुम्हें क्या चीज है वो। सी डी ई ए बी ई। अब देखो इन फिगर ए बी एंड सी डी आर टू इक्वल कोर्स। ए बी और सी डी की लेंथ इक्वल गिवन है। ठीक है पलक, ए बी इज इक्वल टू सी डी गिवन है। विच सेंटर हो ए बी एंड सी डी मीट एट ई आउटसाइड द सर्कल। ए बी और सी डी को जब प्रोड्यूस करती हैं तो वो ई पे इंटरसेक्ट करते हैं। टू प्रूव ए को सी के इक्वल प्रूव करना है, ए को सी के इक्वल प्रूव करना है। दूसरा पार्ट बीई को डी के इक्वल करना है। मतलब क्या कर, कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं हम, वही सेम कंस्ट्रक्शन परपेंडिकुलर वाली। आल्सो ज्वाइन ओई, कंस्ट्रक्शन ड्रॉ ओ एम परपेंडिकुलर टू सी डी लिख दो चाहे सीई लिख दो, दैट इज द सेम थिंग, एंड ओ एन परपेंडिकुलर टू ए। ठीक है, अब ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट करनी है, कैसे करेंगे? सर OE एंड OE कॉमन। चलो कट लगा दिया मैंने कॉमन। एंगल एंगल 1 एंगल 2 is के इक्वल ईच 90। and MO is equal to ON because OE is like perpendicular bisector. नहीं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो ओ एम ओ एन की इक्वल होगा। सर equidistance. हाँ, if chords equal chords of a circle are, third theorem बेटा, equal chords of a circle are equidistant from the center। ठीक है पलक, लिखेंगे कैसे देखो, ए बी इज इक्वल टू सी डी, ओ एम परपेंडिकुलर टू सी डी एंड ओ एम परपेंडिकुलर टू ए बी। दिस इज कंस्ट्रक्शन, this is given and this is construction, therefore OM is equal to OM। या reason, equal chords of a circle are equidistant from center। OM ON की इक्वल आ गया। अब ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट आप कर लोगे, ये मैं नहीं कर रहा, मैं सिंपली OME कॉन्ग्रुएंट टू OME ये लिख रहा हूं। चलो अनुश्री, by which rule the triangles are congruent now? सर RHS. हाँ, अब मेरा बच्चा इंटेलिजेंट हुआ है। कभी भी अनुश्री हथियार नहीं फेंकनी कि आई डोंट नो, तो मैम भी बोल देगी आई डोंट नो हाउ आई कैन गिव यू मार्क्स। ठीक है, हमें Yes, रूल्स sir. पता है, सब कुछ पता है, हमने तो सिर्फ उसको फिगर में से देख के बताना है ना बच्चे। अब कैसे बता दिया? सिंपल था ना? एक्सप्लेन किया था। यस सर। हाँ, मैथ बहुत इजी है, बस इससे डरना नहीं है। रूल बस पूछा है, रूल देखो क्या चीज यूज हुई है, बस है ना। दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई बेटा, कॉन्ग्रुएंट हो गई तो एम ई एन ई के इक्वल आ गया, आ गया सीपीसीटी। नाउ अगेन सी डी इज इक्वल टू ए बी, दिस इज गिवन। पलक, सी डी को क्या लिख सकते हैं?
सर ए बी ओके वो तो टू लिख ही एम दिया, टू सी एम परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, सी एम डी एम की इक्वल है, तो सी डी को क्या लिख सकते हैं, टू टाइम सी एम, ए बी को टू टाइम ए एन, रीजन परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, फर्स्ट थ्योरम। सी एम ए एम के ए एन के इक्वल आ गया, इसको सेकंड, फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर दो, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, एम ई में सी एम ऐड हो गया, एन ई में ए एन ऐड हो गया, एम ई कहाँ है, ओए एम ई कहां से आ गया, एम सी था, क्या कर दिया मैंने, ओ फर्स्ट ठीक है, एम ई प्लस सी एम सही था, ई सी या सीई, एन ई प्लस ए एन ई प्लस ए एन, दैट इज ए, फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया, थर्ड इक्वेशन ले लो, सी डी इज इक्वल टू ए बी, फोर्थ इक्वेशन, दिस इज गिवन, देखो पूरी साइड पूरी के इक्वल आ चुकी है, अब सी डी, अगर पूरी में से सी डी माइनस कर दें वी गेट डीई, पूरी में से ए बी माइनस कर दें वी गेट बीई, सब्ट्रैक्ट फोर्थ फ्रॉम थर्ड, सी डी माइनस सीई, और इस साइड ए बी माइनस ए, सी डी में से, सॉरी सी डी माइनस ए, क्या कर दिया मैंने, उल्टा कर दिया, सब्ट्रैक्ट फोर्थ फ्रॉम थर्ड आना था, सी पहले आना था, सी माइनस सी डी एंड ए ई माइनस ए बी, सीई में से सी डी माइनस किया ये वाला, तो क्या बच गया हमारे पास, डीई बच गया, दैट इज डीई, एई में से ए बी माइनस कर दिया, क्या बच गया हमारे पास, बीई बच गया, यही हमें प्रूफ करना था सेकंड पार्ट, समझ आया, पृष्टि सृष्टि, सृष्टि ने तो बोलना नहीं है, मौन व्रत रखा हुआ है उसने तो, यस सर क्या धमकी दे रही है सृष्टि, चलो हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है बेटा, अब जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है दैट इज 15.2, उसके अंदर जो फर्स्ट थ्योरम हम करेंगे वो है बच्चे इक्वल कोर्स ऑफ अ सर्कल, सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर, इक्वल एंगल्स एट द सेंटर, देखो एक सर्कल है, उसकी दो कोर्स इक्वल है, मैंने ऐसे बना ली, ए बी एंड सी डी, सेंटर इज दिस वन, ए बी से सेंटर पे कौन सा एंगल बना, एओबी, सी डी से सेंटर पे कौन सा एंगल बना, सीओडी, ये अगर कॉर्ड्स इक्वल है, मतलब इफ ए बी इज इक्वल टू सी डी देन एंगल एओबी इज इक्वल टू सीओडी, ये रिजल्ट हम लिख सकते हैं, मतलब अगर कॉर्ड्स इक्वल हैं तो कॉर्ड से सेंटर पे जो एंगल बनेंगे वो इक्वल होंगे, अंडरस्टूड, यहां इक्वल कॉर्ड की जगह इक्वल आर्क्स भी आ सकता है, अगर इक्वल आर्क्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर, ये भी लिख सकते हैं, समझे बच्चे, थ्योरम नंबर 2 इसका कन्वर्स है, इक्वल वर्ड छोड़ देना है, कोर्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर आर इक्वल, अगर कोई दो कोर्स सेंटर पे इक्वल एंगल बना रही है, द एंगल मेड बाय द chords at the center are equal, these two angles are given equal, then chords are equal, कैसे, ये रेडिया इसके इक्वल, ये रेडिया इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल, ऐसे एस रूल से ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट, तो ए बी सी डी के इक्वल आ जाएगा, मतलब chords
of a circle which subtend equal angles at the center are also equal in length. दोनों को प्रूफ करना बहुत इजी है. यहाँ कॉर्ड्स इक्वल थी, सेंट्रल एंगल इक्वल प्रूफ करना है. ये कॉर्ड इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल. एसएसएस रूल से ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो ये एंगल इसके इक्वल आ जाएगा. मतलब प्रूफ आप अपने आप कर सकते हो. इसके अंदर एसएएस रूल लग जाएगा तो एबीसीडी के इक्वल आ जाएगा. समझे बच्चे? हाँ जी. 15.2 exercise first sum. Arc APB and CQD of a circle are congruent. Arc APB, ये आर्क ले ली जो मैंने डबल कर दी, दिख रही है सबको. और दूसरी आर्क बच्चे CQD, मैं यहां पे ले लेता हूं CQD, ये वाली आर्क जो मैंने डबल कर दी. We have to prove AB is equal to CD. सेंटर O, इसको ज्वाइन कर लो, इसको ज्वाइन कर लो, इसको ज्वाइन कर लो, इसको ज्वाइन कर लो. गिवन आर्क एपीबी, ऐसे आर्क को ऐसे डालते हैं बेटा. एपीबी डाल के उसके ऊपर आर्क का सिंबल डाल देते हैं. इसका मतलब ये लेंथ आर्क की, इस आर्क की लेंथ के कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट और इक्वल, दैट इज द सेम थिंग, सीक्यूडी. मतलब इन दोनों की आर्क की लेंथ इक्वल है. टू प्रूव वी हैव टू प्रूव AB इज इक्वल टू सी. प्रूफ. Since arc APB is equal to arc CQD गिवन है हमें, तो ये वाला एंगल इस एंगल की इक्वल होगा. एंगल 1 और 2 लिख देता हूं. इक्वल आर्क्स सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर. इक्वल एंगल्स एट द सेंटर ऑफ सर्कल. समझ आया बच्चे? ये बोलो. यस सर. अब उल्टा चल पड़ो. 1 और 2 इस कॉर्ड से बन रही है, तो देयरफॉर AB is equal to CD. Reason: if angles subtended by chords at the center are equal, then chords are equal. If angle subtended by chords at the center are equal, then chords are equal. समझे बच्चे? हो गया प्रूफ. कुछ भी नहीं था, बेकार सम था, सिर्फ 2 बार स्टेटमेंट लिखी है थ्योरम्स की. नाउ सेकंड सम. A and B are point on a circle with center O. C is a point on the circle such that OC is bisect angle AOB. Prove that OC bisect. हाँ जी. सर 1 में तो AB और CD का रेशियो निकालने बोला है. अच्छा, ओहो सॉरी. AB अपॉन CD क्या आ गया बेटा? CD को नीचे ले गए, 1:1 आ गया रेशियो. मैंने भी देखा नहीं. ठीक है, रेशियो क्या आ गई? उसी के आगे हो जाएगा ना बच्चे. अनुश्री, CD को नीचे ले गए, AB रेशियो CD क्या आ गया? 1:1 आ गया. ठीक है अनुश्री? यस सर. सेकंड. A and B are points on a circle with center O. एक सर्कल बना लो, उसका सेंटर O है. A and B are points on circle. A and B कहीं पे भी ले लिया मैंने. क्या ले लिया? B यहां ले लिया, A यहां ले लिया. C is a point on a circle such that OC bisect angle AOB.
ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, तो प्रूफ करना है आर्क एसी आर्क बीसी के इक्वल होगी। हो गया, एंगल 1 इज इक्वल टू 2, देयरफॉर आर्क एसी इज इक्वल टू आर्क बीसी। ये थ्योरम लिखवाई थी ना मैंने। कॉर्ड्स की जगह आर्क्स लिख लो। आर्क्स ऑफ अ सर्कल विच सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर आर आल्सो इक्वल इन लेंथ। समझे बच्चे? उन्होंने ये लिखा है ना कि ओसी बाइसेक्ट आर्क ए बी, दैट मीन्स वी हैव टू प्रूव एसी इज इक्वल टू सी बी, बीसी आर्क। थ्योरम की स्टेटमेंट लिख लोगे बच्चे कि लिखूं मैं? बोलो। सर लिख लेंगे। कुछ नहीं है बेकार सा, मैं सिर्फ थ्योरम लिखनी है और आंसर आ गया। थर्ड सम सेम ऐसे ही है वो भी। प्रूव दैट एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल इज bisected by the radius passing through the midpoint of arc। अब ये इसके इक्वल गिवन है और एंगल 1 2 के इक्वल करना है, उल्टा सम। अब उन्होंने ये बोला है प्रूव दैट एंगल सबटेंडेड बाय एट द सेंटर, एक आर्क है, सेंटर पे जो एंगल बन रहा है एओबी, कहते हैं एक रेडियस जो इस आर्क को बाइसेक्ट कर रही है, ये इससे इक्वल गिवन है। एसी आर्क बीसी आर्क की इक्वल गिवन है, तो प्रूव करना है ये एंगल इसके इक्वल होगा। सिंपल, बस ये लिख के एसी आर्क इज इक्वल टू बीसी आर्क, दिस इज गिवन। उसके बाद थ्योरम की स्टेटमेंट लिख देनी है। इक्वल आर्क्स ऑफ ए सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। इक्वल आर्क्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। तो देयरफॉर 1 इज इक्वल टू 2। हो गया थर्ड सम। ठीक है, समझ आया? यस सर। Yes, sir. मतलब फ्री के मार्क्स Yes, हैं ये sir. तो। दृष्टि ने नहीं बोला बच्चे, तू ही बोल रही है, मेरे को लग रहा है उसको तो समझ आ गया, उसने तो आंसर दिया था मुझे। दृष्टि, यस सर। समझ नहीं आया कुछ भी? आया थोड़ा थोड़ा। थोड़ा थोड़ा कोई बात नहीं, जब करेगी ना बच्चे कोई बात नहीं। नहीं समझ आया सम करके देखना, अगर नहीं निकलेंगे कल हम फिर से कर लेंगे। ओके सर। ये है बेटा, गिवन क्या है हमें? हमें गिवन है ए बी सी डी के इक्वल है, ए बी इज इक्वल टू सी डी। प्रूव दैट, तो प्रूफ क्या करना है हमें? आर्क ए डी इज इक्वल टू आर्क सी बी, ये दोनों आर्क्स इक्वल करनी है। हाँ, ए बी इज इक्वल टू सी, देयरफॉर आर्क ए बी इज आल्सो इक्वल टू आर्क सी। यहां पे हम रीजन क्या लिख सकते हैं? कॉर्ड्स corresponding to equal arcs are also equal। ठीक है बच्चे, अगर कॉर्ड्स इक्वल हैं तो उनकी आर्क्स भी क्या होंगी? इक्वल होंगी। यस और नो? अब ए बी आर्क को पृष्ठीय हम क्या लिख सकते हैं? एडी आर्क प्लस डीबी आर्क लिख सकते हैं ए बी को। बोलो बच्चे, एडी आर्क दिख रही है ना, ए बी आर्क दिख रही है ना, यहां से लेके यहां तक। यस सर। इसको एडी प्लस डीबी लिख सकते हैं ना बच्चे। यस सर। ऐसी सीडी को क्या लिखे हम? सी डी प्लस सी बी प्लस डी डी बी आर। यस,
डीवी से डीवी कट गया और हमारा आंसर आ गया। हो गया प्रूफ। ठीक है, यस सर। आया समझ? चलो एक यस बार करना, कोई बात नहीं। जो भी डाउट्स होंगे बेटा वो कल मुझसे पूछना। ठीक है। और स्मृति की जगह तू अंगूठा दिखाने लगी मुझे।